Om Shanti, Namaskar. Welcome to this session on converting challenges into opportunities organized by the Education Wing of the Raj Yoga Education and Research Foundation. Welcome to this International Education e-conference with the canopy theme titled as Holistic Education for Excellence in Life. Friends, challenges are inevitable part of human life. We all face challenges of different nature, challenges from people. It could be a challenging situation or a challenging time. And when we face these challenges on a continuous basis, हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये जो चैलेंजेस हैं या फिर जीवन है, ये कभी कभी अनफेयर है मेरे साथ या अनजस्ट है मेरे साथ या फिर बहुत डिवास्टेटिंग है एट टाइम्स और हम उससे उभर नहीं पाते। और यही चैलेंजेस हमारे जीवन में रोड ब्लॉक की तरह हमारे जीवन को रोक देता है। कुछ लोग इस चैलेंजेस से आसानी से उभर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे सकम हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, मन से हार जाते हैं, हौसले टूट जाते हैं, अंदर का जो आत्मविश्वास है वो बिखर जाता है। दे लूज देयर इनर कॉन्फिडेंस। And if you look at life, you might have experienced the same challenging situation for two different people. Ek is very easily able to overcome it, but for the other person, it is very crippling, it is very devastating, and it creates a lot of headache, heartache in life. And at times, people can go into depression and take extreme steps in life. Friends, it is at these difficult times, if we can develop or if we can resort to our inner resilience or a resilient spirit के आधार से अगर हम इन जीवन के संघर्षों को, challenges को देखें, तो it is pretty easy for us to convert these challenges into possibilities is concerned. लेकिन इसको कैसे करना है, करने की विधि क्या है, करने के लिए ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखें तो जिंदगी आसान बन सकती है। लाइफ वुड बी इजी, अचीविंग ग्रोथ कुड बी इजी, challenges would be there, problems will be there, difficulties would be there. And I think while our education system is helping people earn their livelihood, it helps us to survive with all the luxuries and comforts. Spiritual education, inner education will help us to face whatever challenges that comes in my way for the survival. It adds a lot of value to my life. And I would start today's session on a very beautiful story. You might have heard the story quite many a times. एक बार एक young man, very lean and thin, दुबला पतला, he feels that he wants to get into wrestling, into a sport. वो कुश्ती सीखना चाहता है। वो एक गांव में एक अखाड़े में जाता है जहां एक गुरु बच्चों को कुश्ती सिखाते हैं, रेसलिंग सिखाते हैं। So this young, lean and thin boy approaches the Guruji and says, Guruji, I want to learn wrestling. तो गुरुजी उसको कहता है, No, I can't teach you wrestling because you are not built for wrestling. It would be very difficult for you. You can, take up any other sport. He says, No, I'm passionate about wrestling. आपके बारे में सुना है. I want to learn. But the Guru refuses, and this boy persistently, compels the Guru to teach him wrestling. और Guru finally agrees, okay, fine, तुमको इतना ही दिल से wrestling सीखने की इच्छा है तो भले आ जाओ। और दूसरे दिन जब wrestling सिखाने के समय पर, you have to wear a special attire with very minimal clothes. And what the Guru sees in this young boy, he is astonished, आश्चर्यचकित हो जाता है। उस बच्चे को पूछता है कि तुम्हारा तो एक हाथ ही नहीं है, you don't have a hand, how can you learn wrestling without a hand? So he says, Guru, what do I do?
I mean, I met with an accident when I was a small child. I don't have a hand, but I want to learn wrestling. Guru says, so, I mean, I can't teach you wrestling without a hand. तो ही परसिस्ट, वहां से जाता ही नहीं है, जिद करता है. गुरु फाइनली एडहियर्स, बोलता ओके मैं तुमको रेसलिंग सिखाता हूँ. और फिर कुश्ती की ट्रेनिंग शुरू होती है. एंड दिस यंग मैन फिगर्स आउट, पता चलता है उसको, महसूस करता है कि ये जो गुरु जी है उसको एक ही प्रकार का अटैक सिखा रहा है, नथिंग एल्स. No different types of techniques, I mean, techniques to defend himself, nothing, only one style of attack. He gets this thought as to why is this guru so discriminatory. मेरे मेरे एक तो वैसे ही मैं दुबला पतला हूँ, दूसरा मेरा हाथ भी नहीं है, और तीसरा ये गुरु मुझे सिर्फ एक ही दांव सिखा रहा है, बाकी तो मुझे कुछ सिखा ही नहीं रहा है. After 6 months, there is a tournament in a nearby village, and this young boy is astonished to find that the guru has given his name for the competition. और बाकी सब अच्छे अच्छे कुश्तीबाजों का नाम नहीं दे करके उन्होंने उस यंग मैन का नाम दिया. उसको थोड़ा फिर भी मन में आता है कि मेरा नाम क्यों दिया गुरुजी ने. एक तो मैं दुबला पतला हूँ, दूसरा मेरा एक हाथ नहीं है, तीसरा गुरुजी ने सिर्फ मुझे एक ही अटैक style of attack सिखाया, बाकी तो कुछ सिखाया नहीं है. I mean, why me in the competition? I need to learn more things. But he couldn't muster enough courage to go across to the Guruji and ask him, and he goes for the tournament. First round, very easily he defeats the opponent. Oh my God! On one hand, he is very happy कि अरे मैं जीत गया, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में ये भी एक प्रश्न उठता है कि मैं जीता तो कैसे जीता? I mean, how did I win in life? The second round, the third round, the quarterfinals, the semi-finals, and this boy reaches the finals to the utter astonishment of the entire world. उसको खुशी भी हो रही होती है कि वो जीत रहा है, लेकिन मन ही मन एक छोटा सा सवाल भी होता है कि मैं जीता तो कैसे जीता. और वो फाइनल मैच का दिन होता है, पूरे के पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं to see a final match between the previous champion, very heavily built, very famous, very known wrestler versus a lean and thin without a hand. Oh, it's going to be a super match. And everybody comes to watch that final match. And the match starts. And within no time, थोड़ी ही देर में ये दुबला पतला wrestler उस previous champion को मात दे देता, हरा देता है. और ये दुबला पुतला जो व्यक्ति होता है ये जीत जाता. Oh my God, he becomes a hero of that particular village. He is very happy that he is a champion, but he's still with one question as to how did I win this match. He rushes back to the ashram, touches the feet of the Guruji with a lot of respect, with a lot of gratitude. He says, Guruji, maybe आपके आशीर्वाद और आपके ब्लेसिंग से ही मैं मैच जीता, लेकिन मेरा एक मन में एक प्रश्न है, उसका आप जवाब देंगे. गुरुजी says, I mean, why not? Go ahead. What's your question? तो this young man says, गुरुजी, एक तो मैं दुबला पतला हूँ, दूसरा मेरा एक हाथ भी नहीं है, तीसरा आपने मुझे one style of attack ही सिखाया. क्वेश्चन ये है कि how did I win in life? गुरुजी कहता है, yes my dear child, I will tell you how did you win this match. It is a fact that you're lean and thin. It's a fact that you don't have a hand. It is also a fact that for 6 long months, every day, many times, I made you practice only one style of attack. एक ही चीज को सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात कोई व्यक्ति करे 6 महीने तक, तो 6 महीने के बाद वो उस कार्य में एक्सपर्ट हो जाता है. Guru said, you become an expert in that style of attack. बोले, yes Guruji, but the question is how did I win this tournament? And the Guru replied, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, this becomes the basis of converting our challenges into opportunities. इसका मतलब ही ये है कि can I convert my weakness into my strength? And the Guru said, when you went to play in the tournament and when you attacked
विथ एक्सपर्टाइज, विथ प्रिसिशन, उस अटैक से बचने के लिए आपके प्रतिद्वंदी को, आपके ओपोनेंट को, आपका लेफ्ट हैंड को ग्रैब करना, पकड़ना बहुत जरूरी होता है. एंड दे kept on searching your left hand and they couldn't hold your left hand and you kept attacking them, and that is how you could win the tournament. And the Guru said, I converted your greatest weakness into your greatest strength. जीवन में चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को मैं किस दृष्टिकोण से देख रहा हूं, क्या वो मेरे कमजोरी को, कमी को उभार रहा है, या वो परिस्थिति मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है मेरे अपने कमी कमजोरी को मैं खत्म करके और अपने शक्ति को, विशेषताओं को, गुणों को, अच्छाइयों को और उभार सकूं. और ये तरीका अगर आपने और हमने अपना लिया तो लाइफ would be challenging, but we will definitely convert into opportunities and I will grow. तो पहला जो तरीका है जिसके कारण I have to convert the challenges into opportunities is number 1 is perspective, is दृष्टिकोण. हम किस अंदाज में चीजों को देखते हैं. So it is beautifully said, what you see and believe as truth may or may not be the truth, but for sure 100% it will be your truth or my truth or somebody's truth. I repeat, what I believe, what I see and what I hear as truth may not be or may be the truth, but for sure 100% it is your truth. And at times this my truth doesn't help me. This my truth doesn't help me make my life easy. It doesn't add value to me. It doesn't make my life smooth. आपको मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज करके बताता हूँ, ठीक है? आप लोग भी करिएगा मेरे साथ. Very beautiful. You have to keep your finger like this. I hope you are able to see the finger. And you have to keep it somewhere close to your forehead, अपने सिर के पास, पहला अप्रोच में. और फिर दूसरे में उसको आपको शायद आपके पेट के नजदीक तक लेकर आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्योंकि कैमरा है इसीलिए मैं इतना नीचे अपने हाथ को नहीं लेके जाऊंगा. आई विल ब्रिंग इट टिल माय चिन लेवल और मे बी टिल माय चेस्ट. ओके, तो ऊपर, सर के ऊपर आपको हाथ रखना है और आपको हाथ को क्लॉकवाइज घुमाना है. क्लॉक की सुई कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है, ठीक है? यू हैव टू कीप रोटेटिंग योर हैंड्स क्लॉकवाइज. ओके, अब धीरे धीरे इस हाथ को क्लॉकवाइज ही घुमाते हुए हाथ को नीचे लेकर आना है. हाथ को नीचे लेकर आते रहो, आंखों की तरफ लेकर आए, नाक के लेवल पर लेकर आए, मुख के, चिन के, मैं चिन तक लेकर आ रहा हूं ताकि यू कैन सी, चेस्ट, और एकदम नीचे पेट की तरफ. अगर आप बैठ के मुझे सुन रहे हो और अगर खड़े हैं तो और भी नीचे आप अपने हाथ को लेकर आ सकते हैं. कीप रोटेटिंग योर हैंड. दैट मीन्स पहले जब आप ऊपर कर रहे थे आपकी आंखें नीचे थी, आप नीचे से हाथ को घूमता हुआ देख रहे थे. और कैसे हाथ दिख रहा था? क्लॉकवाइज. अब ये हाथ का जो रोटेशन है ये आपके आंखों के नीचे आ गया. नाउ योर आईज आर अबाउ द रोटेशन ऑफ योर फिंगर्स, ठीक है? And now when you look at the rotation of your fingers from the top, now your eyes are above the fingers, rotating fingers. Please अच्छी तरह ध्यान से देखिए, क्या वो हाथ की उंगली क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है? हाथ का घुमाना चेंज नहीं हुआ है, यहाँ क्लॉकवाइज है और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो गया. Actually the truth is it is moving in the same circular fashion. What I am seeing, what I can interpret, what I can believe, यहां से देखता हूं तो क्लॉकवाइज, यहां से नीचे की तरफ देखता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज. अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्लॉकवाइज सही है या एंटी क्लॉकवाइज सही है? जो दिख रहा है
हो सकता है वो वैसा ना हो दोस्तों। एंड वही चैलेंजिंग सिचुएशन को मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से अगर देखूं, I bet you, friends, at times when you view the same situation from a different viewpoint, you create a new thought and a new way to interpret what's happening in my life. Believe me, friends, most of the time, this new perspective, a new outlook is very liberating. मुक्त हो जाएंगे आप, क्योंकि यहां इसके कारण मैं दुखी हूं, मैं इस मूवमेंट के कारण दुखी हूं। मूवमेंट वही है, लेकिन अब मुझे दुख नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने दृष्टिकोण चेंज कर ली। क्योंकि यहां तो ऐसा घूमना ही दुख था ना, यहां तो घूम ही नहीं रहा है, यहां तो उल्टा घूम रहा है। अब उल्टे में सुख, सुलटे में दुख। नथिंग हैज चेंज, इट्स द सेम चैलेंज, but I am liberated, I am at ease, I am creative, I can see life with a lot of hope. बहुत जरूरी है। कोविड, सेकेंड वेव ऑफ कोविड, डेथ, लैक ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, लैक ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, ये सिचुएशन, आई नो इट इज अ ट्रुथ, वो रियलिटी था, नो डिनाइंग द फैक्ट। लेकिन उस ट्रुथ को मैं किस दृष्टिकोण से देख रहा हूं, उसके कारण मैं भयभीत हूं, मैं चिंता में हूं। I am educated, I am well qualified, but it is not creating excellence in life, dear friends. It is very overwhelming for me. Can I change the perspective? COVID-19. Yeah, I need to take all the necessary precautions so that I survive and my family is protected. Maybe everyone is protected. But death cannot shock me, cannot create ripples in my mind, cannot devastate me. You know why? Because death is a reality. I do understand the pain somebody undergoes, wherein the person has lost a near and dear one. But sorry, friends, death is a reality. और डेथ को अगर हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करें, एंड ऑल इट रिक्वायर्स इज वन गुरु टू कन्वर्ट माय वीकनेस इनटू माय स्ट्रेंथ। मेरा हाथ नहीं है, मेरा जॉब नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन शट हो गई है, इकोनॉमी की कंडीशन थोड़ी गंभीर है, मेरे पास रिजर्व्स नहीं है, मेरे बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा। ये सब तो कमजोरियां ही है ना, ये सब तो शॉर्टफॉल्स ही है ना। लेकिन सत्य है, दुबला पतला था वो यंग बॉय, फैक्ट है। उसका एक हाथ नहीं था, फैक्ट है। दूसरा हाथ कहां से लगाए, इतना धन नहीं है। ये सब तो फैक्ट है। बट कैन आई प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ वेर इन आई एक्सेल इन लाइफ, नॉट बाय हैविंग एन एक्स्ट्रा हैंड, but by converting the weakness of this hand into a greatest strength. और उसके लिए you will have to definitely have a different perspective. Second very important thing, जो second tip जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, and that is openness. Can I be open? And openness means what? कभी कभी हम we wear masks. When challenges are there, I try to project a very beautiful, a very confident, a very smart outward personality. लेकिन अंदर थोड़ी सी अवस्था गंभीर है, थोड़ा सा डर है. And in the whole process, I am creating an illusion, an imaginary, personality for others to see that I am really powerful. लेकिन अंदर से मैं नहीं. Can I be open to accept my own weaknesses? That yes, this is a challenge that I'm facing, and I'm ready to
handle the situation of my life very easily. Very important. The third tip is what I call it as curiosity. क्यूरियस होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स. जब हम छोटे थे ना, आप जब छोटे थे तो कितने क्यूरियस, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा कैसा है, ये ऐसा क्यों नहीं होता, वो वैसा क्यों नहीं होता है. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम प्रोग्राम्ड होते चले गए, हम कंडीशनड होते चले गए, हम फिक्स्ड होते चले गए. चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है तो हमारे फिक्स्ड माइंडसेट, फिक्स्ड एटीट्यूड से हट करके हमें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना पड़ेगा. और पता है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट का अंतर क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा टैलेंट और इंटेलिजेंस को फिक्स मानता है. I mean, it cannot be improved. Whereas growth mindset always bring about changes in their intelligence, in their experiences and so on. फिक्स्ड माइंडसेट वाला चैलेंज के लिए जो भी प्रयास करेगा ना, बोलेगा ये तो फ्रूटलेस है, कितना भी मेहनत करो मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, ये जिंदगी ही ऐसा है, लोग ही ऐसा, समय ही ऐसा, मेरा भाग्य ही ऐसा है. लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला वो भी प्रयास करेगा. लेट अस अज्यूम वो रिजल्ट नहीं भी आएगा जैसा वो चाहता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला हमेशा ये सोचेगा द एंटायर जर्नी ऑफ दिस लाइफ वाज वेरी वेरी experiential. I learned a lot of things in this process of life. वो हमेशा रिजल्ट को फायदे और नुकसान के आधार पर नहीं देखेगा. मैंने इतनी मेहनत की और देखो फायदा तो कुछ हुआ नहीं. भले फायदा रिजल्ट के रूप में नहीं हुआ, लेकिन ये पूरा प्रोसेस was very liberating. Was the entire process of life was, gave me beautiful lessons of life. ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत बहुत जरूरी है. इसीलिए मैं कहता हूं लाइफ का आधार ही होना चाहिए लर्निंग rather than the result. एंड क्यूरियोसिटी हमको हमेशा इस एक ग्रोथ माइंडसेट देता है कि that whatever is happening in my life, can I learn the lessons from it, positive lessons from it. और growth mindset is directly related to spiritual education. क्योंकि जो spiritual person होता है वो लाइफ को कभी भी नेगेटिव और मायोपिक व्यू में नहीं देखता है, बहुत संकीर्णता से नहीं देखता है. वो जीवन के हर अनुभव में, भले ही बड़ा कठिनाई वाला हो या नुकसानदायक भी क्यों ना हो, वो उसमें भी अच्छाइयों को ढूंढ लेता. अच्छा, इसमें मैंने ये सीखा, मेरे में ये कमी थी, मेरे में ये विशेषताएं थी, मुझे अभी भी अपने अंदर की इन कमियों पर कार्य करना है. कैन आई ऑपरेट माई लाइफ आउट ऑफ पीस, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ करेज. जनरली आई आस्क दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन, खुशी के लिए जीना है, पैसों के लिए जीना है, नाम मान शान के लिए जीना है? जब मैं ये पूछता हूँ ना, सारे लोग मुझे कहते हैं गिरीश भाई फर्स्ट ऑप्शन, खुशी के लिए जीना है, खुशी के लिए जीना. तो मैं उनको कहता हूँ तो एक काम करिए, आप अपने पास जितना भी आपके पास पैसा धन है वो सब मुझे दे दीजिए और मैं आपको खुशियाँ दे दूंगा. तो उन्होंने कहा नहीं पैसे भी चाहिए. मैंने कहा कि आपका वो पहला ऑप्शन जो था ना, उसमें भी थोड़ा सा फ्लॉ है. देखना कितनी सूक्ष्मता से हमको चीजों को सोचना है. वो स्पिरिचुअल एजुकेशन हमको ये पर्सपेक्टिव देता है. सेकंड क्वेश्चन, खुशी के लिए जीना है या खुशी खुशी से जीना है? तब लोगों को पता चलता हाँ गिरीश भाई, खुशी के लिए नहीं, खुशी से. और कन्वर्टिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत जरूरी है हम इनर स्ट्रेंथ, इनर वेलबींग, जिसको हम हिंदी में आत्मविश्वास, आत्मसंयम, आत्मबल, मनोबल, इसके लिए मेडिटेशन की पढ़ाई बहुत बहुत फ्रूटफुल होता है. जनरली इट इज सेड, you don't get tired by how much you work.
You get tired because you do not do enough to spark the light within you. हम कर इतना सा रहे हैं मेहनत, लेकिन यहां से बहुत ज्यादा थकते हैं। सफल होगा कैसे होगा, क्या होगा, कर तो रहा हूं, प्राप्त होगा, यहां से थकते बहुत हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि यहां पर अंधकार है, यहां पर डाउट है, यहां पे कॉन्फिडेंस नहीं है, यहां पर विश्वास नहीं है, यहां पर बहुत मेहनत कर रहे हैं टेक्निकल और एक्सटर्नल लेवल पर। तो जितना हम यहां से प्रकाशित होंगे, जितना हम अपने स्व के अस्तित्व को, हु आई एम, व्हाट डू आई नीड एक्चुअली इन लाइफ, व्हाट एम आई एक्सपीरियंसिंग, हाउ इज द फीलिंग ऑफ लाइफ, जब इन गहन प्रश्नों पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं और ये पाते हैं कि मैं इस शरीर, अपने रोल्स, अपने क्वालिफिकेशन से अलग एक बहुत पावरफुल बीइंग हूं, बहुत लवली बीइंग, बहुत हैप्पी बीइंग, ह्यूमन बीइंग, उस बीइंग की स्थिति में, उस कॉन्शियसनेस में, उस स्टेट ऑफ माइंड में रह करके मैं जीवन के हर कार्य को करूंगा। बिलीव मी, इवन इन द challenges in the form of people, time, circumstances comes, I will not lose my inner tranquility. And when my mind is stable, peaceful, for sure I will be able to convert that challenge into opportunities. और यह ज्ञान हमें सतगुरु आकर देता है और कहता है, गिरीश, तुमको जो तुम्हारे कमी कमजोरियां नजर आ रही थी, उसको मैं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको एक स्टाइल ऑफ अटैक में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और वो एक स्टाइल ऑफ अटैक जो है, वो है हमारे ओरिजिनल आइडेंटिटी के आधार पर जीना, अपने कोर वैल्यूज को बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई करना, और उस कोर वैल्यूज से मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। माई लाइफ is equivalent to that particular value, the value of happiness, the value of peace, the value of inner strength, the value of courage, and in no way I am going to let it go, howsoever difficult the circumstances and situations may be. So friends, whatever you want to do in life, do it with a smile on your face, with positivity in your mind, with passion and dedication in your spirit, and I'm very sure that in future you will experience that life may throw you a lot of challenge, but I have the inner strength to convert into opportunities with the true spiritual knowledge given by the Satguru. I wish that this spiritual education will definitely add a lot of excellence in your life. With that good note, thank you. Wishing you a very bright future, a very successful times ahead. Thank you. Om Shanti.